वाहिगुरु साहिब जियो। सोरठ महला पंजवा। जिना बात को बहुत अंदेसरो, ते मिटे सब गया। सहज सैन आर सुख मन नारी, ऊंध कमल बिगसया। जिना बात को बहुत अंदेसरो, ते मिटे सब गया। सहज सैन हर सुख मन नारी, ऊंध कमल बिगसया। देखो अचरज भया, जेह ठाकुर कहो सुनत अगाध बोध। सो हृदय गुरदया रहाओ। जोए दूत मोहे बहुत संतावत, ते भयानक भया। करह बेनती राख ठाकुर ते, हम तेरी शरणया। जह भंडार गोबिंद का खुलिया, जिह प्रापत तिह लया। एक रतन मोको गुरु दीना, मेरा मन तन शीतल थिया। एक बूंद गुर अमृत दीनो, तां अटल अमर ना मुआ। भगति भंडार गुर नानक को सौंपे, फिर लेखा मूल ना लया। एक बूंद गुर अमृत दीनो, तां अटल अमर ना मुआ। भगति भंडार गुर नानक को सौंपे, फिर लेखा मूल ना लया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह साहब जी दे पावन दरबार दीयां हाज़रियां परदियां गुरु पातशाह साहब जी दे अपने ही निज पावन स्वरूप शब्द नाल चित ला के, जद आप सावधान ते इकाग्र चीत होए जुड़ मिल बैठे हो, पातशाह गुरुदेव जी दियां बेअंत महरहमतां ते वडियाइयां जो सत संगत विच सदा वरतदियां ने, आप उन्हां दे सांझी ते धारणी होए हो। किरपालता करना, अपने निर्मल हिरदे चों अरदास करना जो गुरु पातशाह साहब जी रहमत करन। पावन शब्द दी विचार, बोलण दा ताण ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਖਸ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ जो सच्चे पातशाह साहिब जी ने कृपा की। संपूर्ण रैण अपने प्यार ते भाणे विच बतीत कराई है।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਣੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਤੇ ਸੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਅਸਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਰੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਾ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਿਆਨ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ 'ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਆਬਾਨ, ਵੀ ਐਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੱਕ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਈਏ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਤਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਸਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੀਸਰੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ, ਆਪਣੀ ਜੁਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸਾਂ ਅਕਸਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਸ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
फलां तारीख नूं इन्ने मुकाम ते आ गलबात फलाणे फलाणे दे विच होई, बस वो फिर दार्शनिक लोगों का पक्ष हो जाता। तीसरा पक्ष वो फिर हुंदा वरतदे बजुर्गों दियां कुछ कथा कहानियां, कुछ सीना बसीना उत्थों दी चलदियां होण रवायतां ते परंपरावां, ते कुछ उन्हां दे बाबत जिन्हां दा इतिहास हुंदा, उन्हां दे अपने कीते, अपने बोले, अपने दसे उपदेशों के विचों उस घटना नूं दार्शनिक ते कथावाचक अपने ढंग नाल परोण का यतन करते हैं। ये कथा इस ते बस यही इतिहास ते कथा च फर्क होंदा है। इतिहास नावां ते थावां दी पड़चोल करके लंघ जांदा है। कथा दे विच नावां ते थावां दी असीं बहुती पड़चोल घट करते हैं। उत्थे वरत रहे साके नूं, वरत रही घटना नूं समझण दा बहुता यतन करते हैं, ताकि सानूं उहदे चों कुछ समझ आ सके। लोग कहिंदे ने इतिहास दोहराया जाता है, मतां किते कल नूं साडी जिंदगी च घटना वापरी फिर की करोगे। साडे कोल कोई आदर्शक पैमाना होवे, इदां गल होई सी उदों होई, ते जे उदां दी गल हुंदी ते हुण भी वो युग तो तकनीक, इनू शास्त्र लोग टूल कहिंदे ने। जे इस टूल दे नाल उदों पेच खुलिया सी, हुण भी उसे टूल नाल खुलेगा। इस नूं लोक नीति भी कहिंदे ने। गुरु नानक साहब दे घर कोई टूल है सत दा, भई जिंदगी की हर मसले का समाधान सत दे सदके हो सकता। तुसीं सत ते टिक जाओ, समस्या का समाधान समय पा के आपे हो जाएगा। खैर, क्योंकि अज असीं किसी समस्या की गल चर्चा नहीं करते। गुरु अमरदास महाराज जी के जीवन का एक पक्ष जे सानूं इस शब्द तो समझ आ सके, शब्द ते पंचम पातशाह महाराज जी का अंक करके गुरु ग्रंथ साहिब जी के 612 तो सुशोभित है। जिना बात को बहुत अंदेशरो, ते मिटे सब गया। जिन्हां गल्लां दा मेरे मन च बड़ा अंदेशा सी, की होएगा, किदां होएगा, की है, किवें, यही अंदेशा हुंदा ना। अंदेशा पुरानी भाषा है जो अज असीं पंजाबी च घट बोलते हैं, हिंदी नाल संबंधित है। अंदेशा अज शक शुभा ऐसियां कुछ भावनावां जिहदे बारे अज होर समझण आवे क्लीयर नहीं है, डाउटफुल। जिन्हां नुकतियां ते जिन्हां गल्लां ते असीं क्लीयर नहीं है, की होएगा, कैसे होएगा, किदां होएगा, ये है की ते ओह की है ते की है, दुविधा च पए होईए। फिर कुछ ऐसा समा आवे वो बिल्कुल क्लीयर हो जाए। अज महाराज सानू कहते हैं एक गुरमुख रूह वालों इस अनुभव को किते वरतिया जाता है। असीं तो रूपक ही बनाने आ। एक वो जी जिहड़ा संसार च विचर रहा है, तमाम भरमा शंकावां दे नाल उलझिया पिया। ज्ञानी है पर ज्ञानी बहुते उलझ जाते हैं शंकावां दे विच, तमाम भरमां दे विच। सच दा, असलीयत दा उन्हां नूं आभास होण लग पैंदा है, पर उन्हां दे आले दुआले कुछ ऐसा सर्कल बनिया हुंदा, उन्होंने तोड़ नहीं पा रहे। वो फिर कर सोचते किदां होएगा, पता तो है उत्थे जाना, जावांगे किदां। हुण इत्थे देखदे हां असीं गुरु अमरदास महाराज 20 साल गंगा दी यात्रा ते जा रहे हैं, लमेरी यात्रावां कीतियां। 20 साल दी लमेरियां यात्रावां दे विच कितनियां घटनावां, कितने मनुख मिले होणगे, साडे कोल कोई हवाला नहीं गा, क्योंकि उदों कदे कोई डायरी या रोज़नामा लिखे जाते सन। साडे को साडे वडेरियां ने 2 घटना जिक्र किया जो अंदेशा पैदा कर गईयां। अमरदास महाराज के जीवन में इन्हां 2 घटनावां ने उनके मन च उथल पुथल ते अंदेशा पैदा करता, डाउटफुल करता भी मैं हुण तक जो कर रहा पिता पुरखी करता वै साडा, ये काम गंगा दी इशनान यात्रा पूजा पाठ पिता जी करते रहे, हुण मैं करदा 20 साल तो करदा आ रहा, कि ये ठीक है कि ये नाल जे मेरा कल्याण नहीं तो फिर किदां होएगा। तो दूजे पासे एक कहंदा तू बड़ा कामयाब मनुख बनेगा, कि इस यात्रावां ते पूजा पाठ के नतीजन मैनू कामयाबी मिलनी है। जिन्होंने असीं कहने कि जदों महाराज यात्रा करते एक पड़ाव ते ठहरे ने, तो एक विद्वान व्यक्ति जो समुद्रिक विद्या का जो अजकल ज्योतिष नाल संबंधित हस्त रेखा शरीर की रेखावां का विद्वान है, उन्हें रेखावां देखिया कहने लगा
इन्हां चरणां ते जगत नूं झुकना चाहिए। अज तुहाडे चरणां 'च रेखावां ने जो अज भी आपां हत्थ पैरां देखते हैं ना, रेखावां कुदरत ने बनाईयां। ते कुदरत दा कीता होया कुछ भी बेमतलब नहीं जे हुंदा। असीं ठीक है मनदे हाँ नहीं मनदे, समझते हाँ नहीं समझते, ये साडी अलग अलग बात होएगी, पर कुदरत दा कीता होया कुछ भी बेमतलब नहीं है। कुदरत के हर निशान का कोई मतलब होएगा। तो शरीर के साढ़े हत्थां पैरां 'च रेखावां ने ना, इन्हां दा कोई मतलब होएगा। कहने लगा आज तुहाडे चरणां 'च रेखावां ने दा मतलब है कि दुनिया ना चरणां ते झुकनी चाहिए, झुकदी होएगी। कहने लगे भलिया मैं तो एक साधारण जिहा बंदा, छोटा मोटा हट्टी पट्टी का किरत कमाई का रोजगार व्यापार है। ये ठीक है कि गंगा देवी के उपासक हाँ, जाईदा आईदा यात्रा कर आईदी, पूजा पाठ कर आईदा, पर झुकण झुकाने वाले कोई गल नहीं। कहने लगे अच्छा अज तक ऐसा कोई बनया नहीं? कहने लगे नहीं अज तक तो कुछ नहीं बने। फिर कहने लगे बनेगा, सबब बनेगा कि इस चरणां ते दुनिया झुकेगी। हैरान हो कहने लगे इन्नी उम्र लंघ गई है, 60 साल के आले दुआले हो गए हाँ, लोग 60 साल के व्यक्ति को बजुर्ग कहन लग पेंदे ने, हुण की बनना है? कहने लगा जी मैनू ये नहीं पता कि रब की कुदरत की करती है, पर मैं तो निशान का मतलब दसिया। मैं तुहाडे बारे कोई धर्म व्याख्या नहीं की कि तुसीं की करदे हो तो क्यों करदे हो। मैं तो आ निशान पढ़िया तो दस दिता, बाकी तुसीं जाणो करता जाने, निशान लाउण वाला जाने। कहते हैं कुछ वक्त इन्होंने कुछ पैसे दिते, जिवें अज भी असीं कदे कदे कहने शायद पैसे करके दसता होएगा। कहने लगे मैं पैसे करके लालच करके नहीं दस रहा, पर चलो तुसीं देना चाहते तो हुण नहीं। जदों ये मेरी पढ़ी हुई गल सच होएगी, अज जो मैं तुहानूं दस रहा कि इन्हां कदमां ते दुनिया झुक रही होएगी, उदों कुछ दे दिया जे, पछाण लिओ क्योंकि उदों तुसीं बहुत वड्डे हो जाना, पछाण लिया जे। महाराज कहणगे चल देखांगे। एक साधारण जी गल आएगी होगी, उन्हें कहता ना कदमां ते दुनिया झुकेगी, इत्थे राजयोग का निशान है। गल ठीक है, कोई चंगा लगा होएगा, जो तारीफ हुंदी अपने बारे, कोई इहो जिहा नवां कोई चंगा गल व्यक्ति करदा ते अपने आप नूं कोई चंगा लगदा कोई को चलो महाराज ने सुन लई, महाराज ने प्रवान कर लिया भी माड़ा नहीं है, खुशी खुशी घर वाल आउंदे ने। ते अगे एक होर ज्ञानी मिल जांदा है, गलबात करता है, चंगी है, उहदे नाल दोस्ती मित्रता पै जाए, घर तक आ जाता है, घर भी 2-4 दिन रहिंदा। जदों घर 2-4 दिन रह के गलबात करदे पुछदा भी तुहाडा विहार इन्ना चंगा है, तुसीं चंगे बंदे हो, तुहाडा गुरु कौन है? तो ठठंबर जाते ने मेरा तो गुरु कोई नहीं, मैं तो गुरु वाला ही नहीं। उन्होंने कहते मेरा तो गुरु कोई नहीं, भी मैं तो किसी को गुरु नहीं मानता, मैं तो गंगा का उपासक हाँ, मैं गुरु नहीं मानता किसी को। तो कलपदा पिटदा तुर जाता भी तू तो निगुरा है, निगुरे का साथ किया, मेरा धर्म भ्रष्ट किया। हुण ये अंदेशा पैदा होता है भी वो बंदा ठीक सी कि ये बंदा ठीक है, उस ज्ञानी की गल ठीक सी कि इस ज्ञानी की गल ठीक है। असीं भी कदे कदे दुबदा मन कर सकते हैं भी वो बंदा जिहड़ा शरीर के चरणों के निशान देख के कह रहा तुहाडे कदमां ते दुनिया झुकेगी, वो भी ठीक है, या आ बंदा घरों तुरदा उच्ची उच्ची कूकदा जा रहा है, निगुरे का साथ किया, धर्म भ्रष्ट किया, भी तू तो निगुरा है, तेरे नाल जुड़ के मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया ही, लानतां पाउंदा जा रहा भी ये ठीक है। और बंदा गलत ये भी नहीं है क्योंकि भी कोई धर्मी ज्ञानी है। ये दुविधा पैदा हो गई आखिर की है। कहते हैं कई रातां इसे उथल पुथल, इनू ऊहा पोह कहते हैं, उधेड़ बुन कहते हैं, कई रातां इसे टेंशनस इन्हां विचारां दी उथल पुथल च गुजर गई भी सच की है, असल की है, इनू कहते हैं अंदेशा जा पै गया, डाउट हो गया। मैं कि यात्रावां सफल होईयां कि नहीं सफल होईयां, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। तो कहने इन्हां यात्रावां दा, इन्हां सारे सिलसिले का समाधान कदों मिलिया? तो कि वह परिवारक घटना गाथा है कि घर भतीजी नूं अमृत वेले पहलां भी तो बाणी पढ़ते होणगे ना, बीबी अमरो अज ही थोड़ा बाणी पढ़ते हैं, वो तो अपने नितनेम मुताबक पहला पढ़ते होणगे, रोज़ाना ही पढ़ते होणगे, पर जदों दिल मन इहो जी अवस्थावां विच हुंदा है उदों कहते डुबदे नूं तिनके का सहारा हुंदा है। उदों उन्हां दा एक बोल भी सहारा बन गया
तो गुरु की संगत विच पहुँचे। अज की गल है, जदों गुरु के दर्शन किए तो आ तुक शायद सानू पढ़ नहीं समझ आए। जदों गुरु की संगत की, गुरु के दर्शन किए, गुरु की बाणी सुनी, उपदेश सुनिया, गुरु की कृपा हुई तो कहने लगे जिन्ना बात को बहुत अंदेशरो ते मिटे सब गया। हुण कोई अंदेशा नहीं जे, हुण कोई डाउट नहीं जे, हुण कोई भरम भुलेखा नहीं जे, हुण कुछ भी ऐसा मन च ख्याल नहीं गा। हुण लोग की कहिंदे ने, लोग क्यों कहिंदे ने, गल ही मुक गई है। लोगों ने बथेरे ताने मिहणे मारे होणगे। पुरानी साखी च ऐसे कई बोल वरते गए ने। परिवार के जीआं भी कि लिया बुढ़े बारे कित्थे जा बैठे हो, कुड़मां दे घर बह गए। बड़ियां गल्लां हो जिहियां होंदियां ने। समाज अज भी करदा है। साडे चों आप संगतां चों कोई बहुता समां गुरुद्वारे बह के घर दे कि लै उत्थे बैठे रहना सारा दिन। ये घरों गल्लां सुणन नूं मिलदियां ने, पर उन्हां नूं मिली होणगे तो कुड़माचारी दा काम है। उम्र वडेरी है, उत्थे तो कुड़मां दा घर है, कुड़मां दे घर बह गए हो। समाजिक धारा उल्टी हो गई, उल्टी गंग वही है। पर वो कहिंदे होणगे जी शब्द आपां समझ सकीए, वो कहिंदे नहीं हुण मैनूं कोई शक नहीं। मैं जिस टिकाणे ते पहुँचना सी मैं टिकाणे ते पहुँच गया। मैं जिथे जाना चाहता सी, जिसकी तलाश करता सी, वो मेरी तलाश पूरी हो गई है। जिन्हां बात को बहुत अंदेशरो ते मिटे सब गया। हुण की हाल है जे पुछिए, जिन्हों असीं ध्यान दर्शन कहने ते ज्ञान की कल्पना कहने, असीं फिलासफी ध्यान दर्शन ते ज्ञान की कल्पना कहने होने। ध्यान दे नाल शांत होकर नेत्र बंद करके बह जाना तो उस घटना के बारे सोचना, जिहड़ी घटना भावें अज तो कल हुई होवे ते भावें 1000 साल पहला हुई होवे। पहलां तो अपने आप को ध्यान च टिकाउणा, आले दुआले दे परिस्थितियों के विचों शांत रखना, तो शांत करके फिर अपने ज्ञान कल्पना के सहारे उड़ा देना भी अज तो घटना किवें, उस सिचुएशन अगर मैं होवां तो की होया होएगा, कैसी हुई होएगी, कल्पना करना। जदों अमरदास बाबा जी गुरु अंगद देव महाराज की सेवा करते हैं तो सेवा करद्या करद्या 5-6 साल गुजर गए। हुण दरमियाना जा भाव बन गए, संगत विच टिकाओ, प्यार सन्मान सब कुछ बड़ा सोहना बन गया। हुण पुछदे हो कि बाबा हुण सुना की याद है, कि पहलां तो घर दे भी माड़ा मोटा बोलते होणगे, एक ओपरा जिहा पान होएगा, कहण लगे हुण तो आनंद है। हुण की हाल ही, कहण लगे सहज सैन हर सुख मन नारी। हुण तो आनंद है। सहज सैन कहिंदे ने, सहज दी समाधि निद्रा। लोग इसकी पहली अवस्था नूं तंद्रा कहिंदे ने। कदे कदे अपना साडा सब ना हुंदा है, क्योंकि असीं ज्ञानी नहीं आ, इस करके सानूं दा भेत नहीं लभे की हो गया। कीर्तन सुनते हुंदे आ, कदे शायद अपना होया होवे, सोहणे टिकवें लैच, बहुत उच्चा शोर शराबा ना होवे, टिकवें मिठी जी लैच कीर्तन हो रहा है। असीं ध्यान मगन होकर कीर्तन सुन रहे हैं। हौली हौली कई बार ऐसा हुंदा है कि आले दुआले कौन बैठा है, कौन आया, कौन गया, चला जाता पता नहीं दिंदा। केवल ध्यान विच शब्द रह जाता है। कई बारी साथों इत्थे भुल हुंदी है, वो साडे वस विच नहीं हुंदा। कई बारी शब्द स्किप हो जाता है, केवल संगीत रह जाता है। तबले की टक टक वाजे की सुरां रह जांदियां ने, किहड़ी तुक पढ़ रहे ये नहीं पता होता। तो कई बार तुक हावी हो जाती है तो तबला वजदा कि नहीं वजदा सानू नहीं पता होता। ये सहज सैन की तंद्रा होंदी है। सहज समाधि की पहली अवस्था जिथे आनंद जिहा हुंदा है, खेड़ा, शरीर की कोई थकान उकताहट नहीं हुंदी, किसी प्रकार का शरीर का बोझ नहीं हुंदा। पर इत्थे कुछ पल हुंदे ने, जे सुचेतता बन जाए तो मनुख अगे टप के समाधि च चला जाता है। जब अविसलापन हो, जगह शरीर साथ ना दे रहा हो तो नींद आ जाती है। तो जे दोनों गल ना बन तो बंदा बिच तरबक के उठ जाता, एक ही होया। बस ये 3 अवस्था तो हम अक्सर ये कहते सहज समाधि निद्रा। लोग नींद में चले जाते हैं, लोग समाधि चले जाते हैं, लोग तरबक के उठ जाते हैं। फिर कहते शी मैंने झपकी आ गई, आला दुआला व्यक्ति सज्जे खब्बे नहीं, किसी को कुछ नहीं पता लगा। वेख्या होना कईयों का एकदम झटके ना सिर उलरदा है तो चेतना च आ जाता है। एक पल हुंदा जदों समाधि लग सकती है, उदों हिरदा खिड़िया हुंदा।
कोई पछतावा नहीं हुंदा, कोई दुख नहीं हुंदा। दुनिया की कई बार शरीर की भी कोई पीड़ा उदों नहीं हुंदी, घर परिवार की कोई टेंशन नहीं, उस पल विच कुछ भी नहीं हुंदा, केवल खेड़ा हुंदा, आनंद का अनुभव हुंदा है। उसका जिक्र करदे वो सुखमन नारी, सुखमन नारी है योग शास्त्र वाले वरतते ने, योगी वरतते ने। गुरबाणी च दा संकेतक जिक्र किया गया सुखमना नाड़ी, इड़ा पिंगला और सुखमना तीन बसें कठाई। शरीर दियां जोगी तीन नाड़ियां मानते ने, जिवें दो नासिका साढ़े नक के दो पासे सज्जा ते खब्बा, जिथे प्राणायाम लोग करांदे ने, पर सुखमना कहते हैं कि इन्हां तो गुप्त नाड़ी है। इस करके असीं उहदी व्याख्यावां चर्चावां च नहीं पैंदे। वो गुप्त नाड़ी भाव ध्यान की, चेतना की, लोग सुरत कहते हैं। जदों सवास, जदों मनुख दा चेतना अगां टिक जाती, सुखमना च सुख वरतन लग पैंदा है। जिथे जाके साह लैंदियां सिमरन करदियां सुख वरतन लग पे, सुख का अनुभव होण लग पे। हुण को बहुता औखा ना साह आ रहा है, ना औखे होके जप कर रहे, नहीं आनंद ना सौखे साह लै रहे हैं, सौखा जप कर रहे हैं। चेतना पूरी है, सुखमन हुंदी है, सुखमन अवस्था हुंदी है। ये सुखमन अवस्था कुछ समय बन जाए तो फिर एक अवस्था होर बनती है, उसनूं उन्मन अवस्था कहते हैं। उन्मन अवस्था फिर की मन ढैंदियां कलां चों निकल के चढ़दी कला च आ जाता है, खिड़ जाता है, आनंद का अनुभव होने लग पैंदा। फिर चित करता बस कोई सानूं बुलाए ना, कोई छेड़े ना, टिक के बस इत्थे बैठे रहिए। अगर किते संगीत विच कीर्तन हो रहा है तो बस मैं सुनता ही रवां, कीर्तन हुंदा रहे तो मैं सुनता रवां। महाराज कहते कि हुण तो हालत है कि बस ना जोगियां वांग औखे औखे लम्मे साह लैण की लोड़ पैंदी है, ना इधर उधर भटकण की लोड़ पैंदी है। हुण तो सुखमन है, चेतना सुखमन अवस्था ते पहुँच गई है, सहज सहन है, आनंद बनिया रहिंदा है। और ये जप कीर्तन करदिआं और सुखमन अवस्था ते अभ्यासियों की किरत करदिआं बरकरार रहिंदी है। ये सुखमन अवस्था अभ्यासियों की किरत करदिआं बरकरार रहिंदी है। अभ्यासियों दे तां जिन्होंने शहादत के मुकाम हुंदे ने, ये उत्थे भी बरकरार हुंदी है। ये सुखमन अवस्था च जदों जी हुंदा है, उदों शरीर की पीड़ा का कोई अनुभव नहीं हुंदा। असीं कदे कदे सोचते हैं कि भाई मती दास साहब के सिर ते आरा रख के चीरता गया, बंद बंद टोटे टोटे कटते गए ने। ये सुखमन अवस्था च ने शब्द ना जुड़े ने, ना लंबे औखे साह लेंदे ने, ना चीख चिहाड़ा, ना हाय तौबा, जो हो रहा महाराज तेरा हुक्म वरत लैण दे। उदों असीं पंजाबी च देह अध्यास तो मनुख छुट जाता है। सतगुर कह लगे असीं तो उत्थे पहुँच गए। हुण कोई शंका नहीं, हुण कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शुबा नहीं, किसी प्रकार का कोई अंदेशा नहीं। सब अंदेशे मिट गए, जम का पौ छुट, सारे भरम भुलेखे खत्म, मैनू मेरा टिकाणा मिल गया। जिन्हां बात को बहुत अंदेसरो, जिन्हां दे बड़े शंके सन, सब मिट गई गल्लां। हुण सहज सहन है, सहज समाधि की अवस्था बनी रही, रस और सुखमन नारी, नाड़ी जो कहते शरीर दियां नाड़ावां, वो सुखमन अवस्था ते हुण की है कहने लगे ऊंद कमल बिगसया, जो हुण तक जिन्हों हिरदा कमल आपां कहने आ, माड़े पासे सी असीं इसनूं चेतना का प्रवाह कहने हुंदे आ। चेतना का प्रवाह किस पासे नूं जांदा है, जिधर नूं कमल का फोकस हुंदा है, साडी चेतना उधर ते जां निवाण नूं हुंदा है जां उतारण नूं हुंदा है। ते जदों ऊंद कमल मूधा कमल पंजाबी च कहीए, मूधा कमल सीधा हो गया, ऊंद कमल बिगसया, कमल मूधा होया सी साडा। साडे बहुते जीआं दा जो दिसता तो नहीं, सानूं पता नहीं लगता, हिरदा कमल जिन्हों असीं गुरबाणी च कहने आ, ये मूधा होया पिया है। कमल मूधा होने का निशाने किवें समझना आवे, जे साडे अंदर काम अते क्रोध दीआं गल्लां ज़्यादा चलदियां ने, जे साडे अंदर काम दीआं लहरां ते क्रोध दीआं लहरां ज़्यादा वगदियां ने, तो समझना साडे कमल का बुरा हाल है। बेचारा मुरझाया पिया जे, सड़िया पिया जे, उहदी हालात कबूती वधिया नहीं। तीजी दूजी अवस्था आउंदी जदों साडे अंदर लोभ दीआं गल्लां निकलदियां ने, मैं मेरी लोभ मैनू, जिथे मेरी मेरी करते हैं उत्थे काम घट जाता है, क्रोध घट जाता है, पर मैं मेरी मेरा कब्जा ये रह जाता है, लोभ वध जाता है, लालच वध जाता है। उदों कमल थोड़ा जा उच्चा तो हो जाता है, पर अजे खिड़िया नहीं हुंदा।
अजे बहुत कुछ प्राप्त कर रहा होंदा है। हौली हौली अवस्था उच्ची होंदी है, जदों खिड़ जाता है फिर आनंद आउण लग पैंदा है, फिर सत चंगा। हुण काम क्रोध नहीं चंगा लगता, हुण लोभ लालच नहीं, हुण जरूरत रह जाती है, लोभ लालच मिट जाता है। हुण मंगदा है सच्चे पातशाह मैनूं 2 सिर आटा बहुत है। आ शाम दे वेले कीर्तन अरदा कीर्तन करके कहिंदे ना, बस 2 सिर मांगो चूना, पाओ घिओ संग लूना, अध सेर मांगो दाले, मुकाओ दोनों वक्त जिवाले। महाराज लालच नहीं मैं ना ही कीता लभो। देख बाबा मैं लालच नहीं करता, मेरे परिवार की जरूरतां ने, तो परिवार दी सारियां जरूरतां दे चेतना आउंदी उदों। ये नहीं कि घर बार छड्ड के जी भज जाता है। घर परिवार दी चेतना, रजाई मंजा तलाई घोड़ी सब चाहिए। एक परिवारक जी नूं सब चाहिए, घर मकान टब्बर टोर सब चाहिए। ये संसारी है ना गृहस्थियाँ, असीं कीर्तन रोज़ कहने मंगते हैं, करके की हन चंगी जन धन्ना लेवै मंगी, असीं रोज़ कहने। ये वो मुकाम हुंदा है जदों कमल खिड़ रहा हुंदा है, समझ पूरी आ जाती है तो लालच मिट जाता है, जरूरतां बाकी रह जांदियां ने। कहण लगे हुण तां मेरी अवस्था है सहज सैन और सुखमन नारी, ऊंद कमल बिगसया। जिथे पहुँचना सी पहुँच गए हाँ, गुरु की संगत मिल गई, टिकाणा मिल गए, हुण ते कमल हिरदा खिड़ गए। कहण लगे सुनो देखो आचरज भया, दुनिया के लोगों देखो आचरज कौतुक वरते अज। जिहदी संगत करके लोग कदे कहिंदे सी तेरा साथ किया जन्म भ्रष्ट हो गया, कहण लगे आ देखो नवा ही कौतुक हो गया जी। लोग उहदी संगत करनी तरसते पे ने। देखो आचरज भया की होया जे, कहण लगे जे ठाकुर को सुनत आगाध बोध। वो दुनिया के लोग कहते इस रब बड़ी दूर है, अज भी सानू लोग कही जाते रब बड़ी दूर है, ना भाई तेरे वस दा नहीं है। अज साडे ते भी अज साडे चों सधारण जी कोई धर्म की गल करे तो साडे कोल ला ना बड़ा औखा तेथों नहीं हुंदा। साडे जियां ते ऐसा एक मानसिक दबाव पै गया है, ना 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 तुहाडे तो नहीं निभना, बड़ा औखा जे, बड़ा औखा जे, मर्यादा निभानी बड़ी औखी जे, तुहाडे वास्ते गल नहीं। सुनते सां लोकां डराया होया सी रब ते बड़ी दूर है, पर गुरु की कृपा के सदके पता लगा कि वो तो दूर ही नहीं सी। हुण तक सोनू दसी जाते सी लोग जे ठाकुर को सुनत आगाध बोध। आगाध कहते जिथे पहुँच ना सकी, बड़ा वड्डा है, बड़ा गहरा है जी, तुहाडे वास्ते नहीं। कह लगे सो हृदय गुर दया, गुरु ने कृपा करती हिरदे च देता, कहने आ लै रब बैठा है मिल। बाहर ढूंढन ते छूट परे, गुर घर ही माहे दिखाया था। सुनते सा रब बड़ी दूर है, रब नूं किवें मिलांगे, बहुत वड्डा है, अगाध बोध है, साडी पहुँच कित्थे। बहुत वड्डे वड्डे अपने वक्त के भगत ते ज्ञानी भी ये गल्लां कहिंदे आए, शायद जिन्हां दियां बाणियां गुरबाणी च दर्ज नहीं इसे करके होईयां कि वो जिथे खलोते रब ते बड़ी दूर है, रब ते बड़ी दूर है। किदां मिलेगा, मीरा इत्थे खलोती है, रब बड़ी दूर है, प्रीतम बड़ी दूर है, नहीं मिल सकता। तो जेड़े पहुँच गए कहने लगे तू तो है हजूर हाजिर अरदास, सब गोबिंद है, सब गोबिंद कहने दिता है। कहने लगे सो हृदय गुर दया, गुरु ने सिर ते हथ रखिया, कहने लगे आ लै परमात्मा तो तू है, तू खुद ही परमात्मा है, तू अपने आप को ध्यान ना देखते मन, तू जोत स्वरूप है, तेन परमात्मा लभण की लोड़ नहीं, तू अपने आप को जान तू की है, तो तेन पता लगेगा तू ही परमात्मा है। ठीक है, तू परमात्मा की ताकता नहीं पर अंश परमात्मा ही है। जिवें समुंदर बहुत वड्डा है तो निक्की जी बूंद नूं कोई कहे तू समुंदर है तो पहले तो छटपटाए कि मैं समुंदर हाँ, पर समझ आएगी कि नहीं हाँ वाकई मैं समुंदर का अंश ही हाँ, तो मैं समुंदर विच ही मिल जाना है। निक्की जी बूंद तो समुंदर एक कोई चीज़ नहीं, पर असीं इस बूंद नूं समुंदर नहीं कह पा रहे। इस तरह असीं अपने अंदर दे एक दूजे दे जी नूं रब नहीं कह पा रहे, पर गुरु नानक कहते नहीं ये रब है, परमात्मा है, क्योंकि बूंद है, एक सागर की बूंद है, करते दी अंश है। कहो कबीर ये राम की अंश। अज साडे अंदर जी जीवात्म बोलती है, सुनती है, जिसकी चेतना करके, जिसकी शक्ति करके असीं सुनते हैं, चलते हैं, हसते हैं, गाउंदे हैं, ये करते की शक्ति है।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਸੋ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰਦਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਹ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਨੇੜੇ ਹੈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਕਟਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋਏ ਦੂਤ ਮੋਹਿ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵਤ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵਿਕਾਰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਤੋਂ ਬਚਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਚ ਦੂਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਭਇਆ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਇਹ ਡਰ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਉਲਟਾ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਜੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਚਰਜ ਪਿਆ, ਜੋਏ ਦੂਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪਤ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਭਇਆ। ਭਿਆਨਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਰ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਏ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਨਖ ਚੜਾਇਓ ਸੱਤ ਦਾ ਜਸ ਹੰਦਾ ਬਾਣ, ਕਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੰਧਾਰ ਸਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿ ਭਾਣ, ਸਤੋਂ ਖੇਤ ਜਮਾਇਆ ਸਤੋਂ ਸ਼ਾਵਾਣ, ਨੇਤਰ ਸੋਈ ਤੇਰੀ ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਖਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਘੋੜਾ ਕੀ ਤੋ ਸਹਿਜ ਦਾ, ਜਤ ਕੀਓ ਪਲਾਣ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਜਤ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਇਕਾਠੀ। ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨਖ ਚੜਾਇਓ ਸੱਤ ਦਾ ਜਸ ਹੰਦਾ ਬਾਣ। ਹੁਣ ਸੱਤ ਦਾ ਤਨਖ ਹੈ ਤੇ ਸਿਫਤ ਦੇ ਤੀਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਕੌਣ ਡਰੇਗਾ? ਉਹ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਪੈ ਪਿਆਨ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਭਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਰ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਰਾਖ ਠਾਕੁਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਲਟੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਰਾਖ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਹਮ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ, ਤਿਨ ਆਗੇ ਕਮਾਵੇ ਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੋ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰਹਿ ਬੇਨਤੀ ਰਾਖ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਹਮ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈ ਭੰਡਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੱਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇ, ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਮਾਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਹ ਭੰਡਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਹ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਤੇ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇ ਲੈਣ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾइन 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਿਲकुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर बिल्कुल मौके ते पहुँचे तो दा समा पूरा हो गया, उन्हें शट डाउन करते कहने लगा अज बस, यानी कि साड़ी अज प्राप्ति नहीं सी, कर्म ठीक सी, सब ठीक सी, टिकाणा ठीक है, पर अज मेरी प्राप्ति नहीं सी, इस करके मैनू मिलिया नहीं। हुण अगले दिन चूँकि मेरी वारी उत्थे है, अगले दिन मिलेगा। ये लाइनां च लगे ने, जिथे भंडार खुले ने, जदों किसी प्राप्ति हुंदी है, प्राप्त अवस्था हुंदी है, उदों उहनूं अदात मिल जाती है। लेकिन लाइन ते लगना पैना ना, अपने कागजात ते ठीक करने पैने ना, अपने कर्म ते ठीक करने पैने ना, अपने बोल बाणी ठीक करनी पैनी ना, अपने कर्मां नूं ते ठीक ही कागजात ने साडे, अपने बोल बाणी ठीक करिए, अपने कर्म ठीक करिए, नेत्रां दे हत्थां दे पैरां दे कर्म ठीक करिए, ठीक ठाक हो के फिर लाइन च लग जाइए, फिर वारी आ जाएगी। कर्महीन धन करे बिनती कद नानक आवे वारी, अज नहीं तो आ जाएगी, तो जदों वारी आएगी तो फिर की मिलेगा। कहने लगे प्राप्त ते लहया की मिलिया, एक रतन मोको गुरु दीना, उस खिड़की तो मैंने एक रतन नाम मिल गया। तो नतीजा मेरा मन तन शीतल थिया, उस एक नाम रतन दे मिलदियां, उहदी शोह मिलदियां ही सब तन मन ठंडा ठार हो गया। बख्शिश वरत गई, कहने लगे तन मन शीतल थिया, एक बूंद गुर अमृत दीनो, ते गुरु ने दिता कि अमृत, ते अमृत दे कोई भंडार कोई बाल्टियां भर के थोड़ा मिलता है। अमृत एक छोह है, अमृत एक प्यार है, अमृत एक दृष्टि है, अमृत एक बूंद है। कहने लगे बस गुरु दे अमृत की एक बूंद मिल गई, तो हुण की अटल अमर नाम हुआ, हुण अटल पदवी हो गई है, हुण अमर हो गए, हुण नहीं मरदे असीं, क्योंकि इत्थे आके भगत कहते मैं ना मरां मरबो संसारा, मैं नहीं मरदा क्योंकि मैनूं अमृत मिल गया। पातशाह कहने लगे भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे, ये भगती का खजाना एक अमृत बूंद किनका एक, जिस जी बसावे के ने भगती का भंडार गुरु साहब ने नानक को दिया, नानक सतगुरु जी अपना नाम लेके भाई मैनू दे दिता जे, तो फिर लेखा मूल ना लिया, इस भंडार के बारे पुछया भी नहीं भी किन्ना वंडता जे, किन्ना खा लिया, बल्कि भंडार ही ऐसा खावें खर्चें वध दो जाई, टोट खावें खर्चें रल मिल भाई, टोट न आवे वध दो जाए। गुरुदेव कृपा करना असीं इस मुकाम नूं हासिल कर सकीए। इस लाइन च लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, प्राप्ति आ जाएगी, वारी आ जाएगी, तो फिर वो एक बूंद अमृत भी सानू मिले, तो अटल अमर हो जाइए। आवागमन के गेड़ मिट जान, भड़म भटकना मिट जाए, सारे अंदेशे मिट जान, तो जम का बहुत छुट जाए। पुनः एक बार तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज जी के पावन प्रकाश पुरब की आप संगत लख लख बधाई। संध्या किस्म बैठ के होर खुलियां विचारां गल्लां करांगे। प्यार ते आसीस दिंदे फतेह बुलावना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।